All my dear friends, my dear viewers, you are once again welcome, and today I will teach you another interesting topic, that is the pot of gold, Sone ka matka, or yes, Shonar Patru Bakhat. Yes, this pot of gold that is written by Titus Maxius Plautus. Okay, so it is written by Titus Maxius Plautus, and Plautus was born in the year 254 BC and died 184 BC. And Plautus is Roman playwright. You know, Plautus is a Roman playwright. And he wrote some of the exquisite comedies, and the pot of gold is one of them. Understood? So Titus Maxius Plautus ने the pot of gold इसको लिखा है, and he is a Roman playwright, as I have mentioned. What is the source of it? The source is Latin aulularia. So Latin aulularia is the source. इसका source है Latin aulularia. Aulularia इसका असली मतलब, or it literally means what? The little pot. The little pot. But the translators have adapted the title the pot of gold. Because of what? Because of the tremendous significance of the pot of gold inside this story. Clear? बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इस स्टोरी में पॉट ऑफ गोल्ड का, इसीलिए जो ट्रांसलेटर्स है उन लोगों ने इस टाइटल को, द पॉट ऑफ गोल्ड, इस टाइटल को दे हैव चूजन. क्लियर? नाउ कैरेक्टर्स द प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर है, मेन रोल जिसका है वो है एक बुड्ढा, एंड बहुत ही कंजूस टाइप का बुड्ढा. ही इज नॉन बट यूक्लियो. Understood? Thereafter, Megadoras. Who is Megadoras? Megadoras is neighbor of Euclio. जो Euclio उनका पड़ोसन है Megadoras. Understood? He is rich. पैसा होने का से ओनर. That means वो पैसा वाला एक आदमी है, and he is not married yet. अभी तक उनका शादी नहीं हुआ है, उम्र ज़्यादा है. ठीक है? So Lyconides, young men. Lyconides is a young man, and Lyconides, who actually, in a drunken phase, he seduced her. That means Phrygia. He seduced Phrygia. इसीलिए Phrygia अब pregnant है. Who is Phrygia? Phrygia is Eucleo's daughter. Phrygia is Eucleo's daughter. Euclio का बेटी का नाम क्या है? Phrygia है. Clear? Now Staphyla. Who is Staphyla? Eucleo's housemaid is Staphyla. Euclio का घर का नौकरानी है Staphyla or Staphyla. So Eunomia. Who is Eunomia? Eunomia is Megadoras' sister. Megadoras का sister है Eunomia. At the same time Lyconides का mother है Eunomia. ठीक है? So Megadoras का sister, Lyconides का mother. So इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? Lyconides and Megadoras के इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? Megadoras मामा, Lyconides ভাঞ্জা, মামা ভাগ্নে সম্পর্ক. Yes, মামা ভাগ্নে যেখানে বিপদ নেই সেখানে. But এখানে আমরা দেখবো number of happenings those are occurring because of মামা ভাগ্নে. Yes, মামা and ভাঞ্জা. Yes. So thereafter Strobylus को लेके बहुत ही ज़्यादा confusion है yes students के अंदर, क्योंकि Strobylus is actually the steward. उनका मतलब है manager of whom? Manager of Megadoras. So Megadoras का manager का नाम क्या है? Strobylus. According to this book, this is Penguin Classic, yes, and translated by E.F. Watling, Calcutta University, and many other universities have adopted, have selected this book, and that's why आज का जो discussion है इसमें ही आधारित है. Clear? So Strobylus is Megadoras' steward. Yes, and Lar familiaris is household deity of
यूक्लियो। लार फेमिलियरिस इज हाउस होल्ड डेटी और कुल देवता है यूक्लियो का घर का। क्लियर? देयर आफ्टर कॉन्ग्रियो, एंथ्रैक्स। कॉन्ग्रियो एंड एंथ्रैक्स दे आर कुक्स। ठीक है? कॉन्ग्रियो एंग्री टाइप का कुक है एंड एंथ्रैक्स यंग कुक। स्लेव हुई स्लेव लाइकोनाइट्स स्लेव। लाइकोनाइट्स का जो स्लेव है इस बुक में इसका कोई नाम नहीं है, जस्ट ही इज अ स्लेव। क्लियर? उनको स्लेव करके ही बोला है। अंडरस्टूड? Another book that is Maple Fresh. In this book, Strobilus is Lyconides' slave, and Megadoras, the name of Megadoras' slave is Pythodicus. ठीक है? लेकिन Pythodicus का कोई मेंशन इस बुक में नहीं है। Understood? These books are fine, but जो मेन स्टोरी है उसमें कुछ कॉन्फ्यूजन है। रियल मैन्युस्क्रिप्ट में पिथोडिकस का मेंशन है, लेकिन पिथोडिकस वो बहुत छोटा सा एक रोल है, इसीलिए दे हैव स्किप्ड द कैरेक्टर पिथोडिकस। सो जिस यूनिवर्सिटी में जिस बुक को सिलेक्ट किया है तुम लोगों को वही किताब फॉलो करना चाहिए। ठीक है? सो सेटिंग एथेंस। एथेंस ये प्लेस सेटिंग के अंदर है। देयर आफ्टर हाउसेस ऑफ यूक्लियो एंड मेगाडोरस। ये यूक्लियो का हाउस, ये मेगाडोरस का हाउस। क्लियर? बिकॉज दे आर नेबर्स एंड देयर आफ्टर व्हाट? श्राइन ऑफ फाइट्स। फाइट्स श्राइन और श्राइन ऑफ फाइट्स। फाइट्स इज एक्चुअली गॉडेस ऑफ गुड ट्रस्ट, जो अच्छे विश्वास का देवी, उनका नाम है फाइट्स। उनका एक टेम्पल है। किधर है? इन बिटवीन द हाउसेस ऑफ मेगाडोरस एंड यूक्लियो। यूक्लियो का हाउस इधर है, मेगाडोरस का हाउस इधर है। उसका बीच में एक मंदिर है, वो है श्राइन ऑफ फाइट्स। श्राइन का मतलब ही टेम्पल। ठीक है? फाइट्स देवी का एक मंदिर है। क्लियर? क्लियर। नाउ genre that is comedy. This is a comedy. Yes, comedy, that means happy ending. The story will be ended happily. Comedy is something that actually ends happily with the ringing of marriage bells. Understood? It is a comedy, fantastic specimen of a comedy, exquisite comedy. Yes? Yes. So this is clear. Now plot, that is lar, that means lar familiaris, household deity और कुल देवता। उन्होंने एक प्रोलोग के साथ ये प्लॉट स्टार्ट किया है। ठीक है? लार का प्रोलोग जो है लार फेमिलियरिस का, उसी के साथ ये कॉमेडी स्टार्ट होते हैं। अंडरस्टूड? नाउ प्रोलोग के साथ, व्हाट इज अ प्रोलोग? दिस क्वेश्चन अराइजेस। प्रोलोग इज एन इंट्रोडक्टरी स्पीच। व्हाट आई सेड दैट प्रोलोग इज एन इंट्रोडक्टरी स्पीच। प्रोलोग क्या है? प्रोलोग है एक इंट्रोडक्टरी स्पीच, शुरुआत का एक स्पीच ऑफ व्हाट? ऑफ अ प्ले और अ बुक और ए मूवी। क्लियर? प्रोलोग है। इसका एंटोनिम क्या है? इसका एंटोनिम है, इसका विपरीत शब्द क्या है? इसका एंटोनिम है एपिलोग। एपिलोग का मतलब क्या है? एपिलोग का मतलब है कंक्लूडिंग स्पीच ऑफ सेम थिंग, ऑफ ए प्ले और ड्रामा, thereafter a book or a movie. Okay? So introductory speech, prologue, concluding speech, epilogue. You must have to remember this. Okay? This story starts with a prologue. Prologue के साथ ये story, ये comedy start होते हैं, लेकिन इसमें कोई एपिलॉग नहीं है। क्लियर? यस। नाउ लार वो प्रोलोग में क्या कहते हैं? लार ने ही बोलता है जो यूक्लियो का फोरफादर है, यूक्लियो का जो ग्रैंडफादर है, पिता का पिता, उन्होंने खजाने, सम ऑफ मनी, ठीक है, छुपा के रखे थे। किधर छुपा के रखे थे? जो ग्रैंडफादर का जो सेंट्रल हॉल है, वो सेंट्रल हॉल में एक हर्थ थे, ओके, फायरप्लेस थे। ठीक है? सो क्या सेंट्रल हॉल एंड सेंट्रल हॉल में एक फायरप्लेस, क्या हर्थ है,
हर्थ, HEARTH, उस हर्थ के नीचे उन्होंने वो खजाना छुपा के रखा था। सम ऑफ मनी दैट इज पॉट ऑफ गोल्ड। और लार को इसके सिक्योरिटी के लिए बोला है। लार वो तो हाउस होल्ड डेटी है, उन्होंने सब कुछ संभाल के रखा है। लार ने वो यूक्लियो का जो ग्रैंडफादर है, वो ग्रैंडफादर का वो खजाना के बारे में यूक्लियो का फादर को कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है, बिकॉज लार वॉज नॉट इम्प्रेस्ड बाय द फादर ऑफ यूक्लियोस बिहेवियर। अंडरस्टूड? देयरआफ्टर व्हाट हैपेंस? देयरआफ्टर यूक्लियो का जो बेटी है, नाम है फ्रेडरिया, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी लार को, वर्शिप करती थी, और फूल से वर्शिप करती थी, वाइन से वर्शिप करती थी। इसीलिए लार ने क्या किया? लार ने ये डिसाइड किया ये जो पॉट ऑफ गोल्ड है ये फ्रेडरिया को देना चाहिए। इसीलिए लार ने प्रोलोग में क्या कहते हैं, ये जो पॉट ऑफ गोल्ड है, ये पॉट ऑफ गोल्ड फाइंड आउट करेगा कौन? फ्रेडरिया के पिताजी यानी कि यूक्लियो। लेकिन यूक्लियो के हाथ से वो पॉट ऑफ गोल्ड कहां जाएगा? वो पॉट ऑफ गोल्ड जाएगा फ्रेडरिया के पास। ओके, प्रोलोग में यही बोला है, ठीक है। देयर आफ्टर यूक्लियो, just look at here, Lar allowed Euclio to discover a pot of gold buried in his house. I have already mentioned this. So Euclio ने वो pot of gold क्या उन्होंने find out किया। Understood? What happens then? Thereafter another character जो है मेगाडोरस। मेगाडोरस का सिस्टर है यूनोमिया। मेगाडोरस का अभी तक शादी तक नहीं हुआ, इसीलिए यूनोमिया ने मेगाडोरस को बोला, क्या बोला? যে आप ভাইয়া अब तुम शादी कर लो, তোমার অনেক বয়স হয়েছে, এখন তুমি বিয়ের কথা ভাবো, বিয়ের জন্য রাজি হও। देयर आफ्टर मेगाडोरस ने बोला ठीक है मैं शादी करूंगा, लेकिन एक रिच लड़की से नहीं, हाँ एक অতি সাধারণ একজন মেয়ে, एक बहुत ही जो कॉमन लड़की है, वो हमारे जो पड़ोसन है यूक्लियो, उनकी बेटी से फ्रेडरिया से मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। अंडरस्टूड? लेकिन what I said, Fredria is already pregnant. Fredria, she is already pregnant by his nephew Lyconides. जो भांजा लाइकोनाइड्स ने क्या किया? फ्रेडरिया को तो नशे में चूर होके वो प्रेग्नेंट कर दिया, ठीक है। इसीलिए कॉम्प्लिकेशन जस्ट हो रहा है। तब मेगाडोरस ने क्या किया? मेगाडोरस ने यूक्लियो के पास जाके उन्होंने बोला जो आपका लड़की को मैं शादी करना चाहता हूं। यूक्लियो ने तब सोचा मेगाडोरस का जरूर कोई प्लान है, वो ये फ्रेडरिया को शादी करना चाहते हैं और दहेज में वो जरूर वो पॉट ऑफ गोल्ड का बारे में कुछ उनको पता चल गया है, और वो पॉट ऑफ गोल्ड को वो फिर से मेरे पास से वो पॉट ऑफ गोल्ड लेना चाहते हैं। लेकिन मेगाडोरस ने बोला मुझे कोई डाउरी नहीं चाहिए, दहेज में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस फ्रेडरिया को चाहिए। तब यूक्लियो ने हाँ कर दिया, ठीक है फ्रेडरिया के साथ तुम्हारे शादी होगी। तो यूक्लियो ने तो हाँ कर दिया, मैरिज प्रिपरेशन इज रेडी, सब कुछ मैरिज का जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से हो रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ? यही जस्ट इमेजिन मैरिज प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन। तब मेगाडोरस ने देखा यूक्लियो का तो बहुत ही ज्यादा ये माइजरली पर्सन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कंजूस है, दारुण किप्टे একজন লোক, ये বিয়ের কোনো আয়োজন করবে না। एंड दैट इज व्हाई मेगाडोरस ने क्या किया? यूक्लियो के घर कुक भेज दिया है, ठीक है, जो फीस्ट होगा वो बनाने के लिए। जब कुक ने उधर गए, कुक ने वो बिल्कुल हलचल मचा दिया है उस घर में। कुक ने, ठीक है, ये चाहिए वो चाहिए, दो वो दो, पॉट दो, कहाँ है इधर, यूटेंसिल्स कहाँ है, बहुत सारे हंगामा मच गए यूक्लियो के घर में। तब यूक्लियो ने सोचा ये पॉट मांग रहे हैं, क्या ये पॉट सोने का पॉट के बारे में इसको इन लोगों को मालूम है क्या?
ऐसा बहुत कंफ्यूजन, बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड हो गए और बहुत ही इनसिक्योर हो गए। तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने सोचा हाँ मेरे घर में ये सोने का पट, ये सोने का जो मटका है ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, इसको मुझे फिर से छुपाना पड़ेगा, ऐसा कोई प्लेस में छुपाना पड़ेगा जिसमें किसी आदमी ने इसको नहीं इसको चुरा सकता है। ठीक है, इसीलिए यूक्लियो ने क्या किया, फ्रॉम हिज हाउस यूक्लियो जस्ट टेक्स द पॉट, यूक्लियो ने बहुत ही बारीकी से ऐसे पॉट ऑफ गोल्ड को उठाया और उन्होंने सीधा चल दिए किधर, वो श्राइन ऑफ फाइट्स उधर, दैट मीन्स फाइट्स का, देवी फाइट्स का जो मंदिर थे उसमें यूक्लियो ने पॉट ऑफ गोल्ड को क्या किया, पॉट ऑफ गोल्ड को बहुत ही बारीकी से उधर रखा और खुद ही बोल रहे थे, श्राइन ऑफ फाइट्स यू आर द गॉडेस ऑफ गुड ट्रस्ट, डोंट जस्ट मेक एनी मिस्चीवस एक्ट विद मी, यस डोंट ब्रेक माय ट्रस्ट, तुम खुद ही तो गॉडेस हो, हाँ तुम मेरा विश्वास, तुम खुद ही तो विश्वास का गॉडेस हो, तुम देवी हो, तुम मत तोड़ो मेरा विश्वास को, मैं बहुत ही विश्वास करके तुम्हारे इधर ये पॉट ऑफ गोल्ड रखा हूं। ठीक है, तब क्या हुआ, तब ऐसा उधर लाइकोनाइट्स का जो स्लेव है वो उधर मौजूद थे और वो सब कुछ सुन लिया। यूक्लियो उनका घर में चला गया। कुछ देर बाद यूक्लियो फिर से पॉट ऑफ गोल्ड के लिए सुरक्षित है या नहीं वो देखने के लिए वो फिर से आए। आने के बाद क्या हुआ, उन्होंने देखा एक आदमी उधर है, लाइकोनाइट्स का स्लेव। तब बोला तुम इधर क्या कर रहे हो, लाइकोनाइट्स का स्लेव बोला मैं इधर कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तब बोला तुम इधर क्यों आए हो, तुम इधर क्या कर रहे हो, वो कुछ नहीं कर रहा हो। तब यूक्लियो ने सोचा इधर इधर भी मेरा पॉट ऑफ गोल्ड तो सुरक्षित नहीं है, तो फिर से श्राइन ऑफ फाइट से उधर से उठा के पॉट ऑफ गोल्ड को वो सीधा चल दिए और वो प्लान बनाया ऐसा जो अब मैं जाऊंगा ग्रोव ऑफ सिल्वेनास के उधर। सो यूक्लियो ने क्या किया, उधर से वो पॉट ऑफ गोल्ड को लिया और सीधा चल दिए सिल्वेनास के ग्रोव में। ठीक है, ग्रोव ऑफ सिल्वेनास। तब ये जो लाइकोनाइट्स का स्लेव वो श्राइन मंदिर के टेंपल के एक साइड में बगल में छुपे हुए थे और सब कुछ सुन लिया। तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने सीधा जो ग्रोव है ना, वो बहुत सारे जंगल है, बहुत सारे ट्रीज है, एक ट्री का बहुत ही ऊपर वो चढ़ गए और सब कुछ उधर से देखा क्या, जो यूक्लियो ने कैसे छुपाया, कहाँ छुपाया, सब कुछ उन्होंने देखा। यूक्लियो बहुत ही अच्छे से छुपा के वो तो वहां से चल दिए। वह यूक्लियो घर में चला गया। देन वो ट्री से उतर के लाइकोनाइट्स का स्लेव वो मटके को उधर से चुरा लिया है। ठीक है, और उन्होंने क्या, लाइकोनाइट्स के पास जाते हैं। लाइकोनाइट्स के पास जब जाते हैं उन्होंने बोला, लाइकोनाइट्स को बोला I have found this line. Lycona's slave appears and tells he has found it. मैंने ये पॉट ऑफ गोल्ड क्या है फाइंड आउट किया है। तब ये जो मेन स्टोरी है जो प्लूटस के लिखे हुए है वो यहाँ पर एंड होता है। ठीक है, प्लूटस के लिखे हुए यही तक ही अवेलेबल है। अंडरस्टूड। उसके बाद ट्रांसलेटर्स यस दे हैव मेड, उन लोगों ने क्या किया, ट्रांसलेटर्स ने एक हैप्पी एंडिंग दी स्टोरी को। कैसे? इट इज एज्यूम्ड दैट टेकिंग द पॉट ऑफ गोल्ड फ्रॉम हिज स्लेव लाइकोनाइट्स रिटर्न्ड इट टू यूक्लियो। ऐसा एज्यूम किया है। उसके बाद क्या हो सकता है, ट्रांसलेटर्स ने ऐसा सोच के ये स्टोरी आगे बढ़ाई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा लिखा कि इसके बाद लाइकोनाइट्स ने वो पॉट ऑफ गोल्ड को क्या किया, लाइकोनाइट्स के स्लेव से लेके यूक्लियो को रिटर्न किया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, একটা প্রশ্ন উঠবে যে লাইকোনাইটস স্লেভ কেন এমনটা করেছে। লাইকোনাইটস স্লেভ has done this because of getting rid of slavery. Okay, फ्रीडम के लिए, स्लेवरी से मुक्त होने के लिए लाइकोनाइट्स का स्लेव ऐसा किया। क्या किया, पॉट ऑफ गोल्ड उन्होंने चुराया। देयर आफ्टर लाइकोनाइट्स जब वो पॉट ऑफ गोल्ड लिया, लेके यूक्लियो को दिया, तब यूक्लियो के सामने लाइकोनाइट्स का इंप्रेशन बहुत ही अच्छा हुआ। ठीक है, और लाइकोनाइट्स यूक्लियो को ये भी बोल चुके थे
मैंने क्या किया फ्रेड्रिया के साथ, वो इसीलिए यूक्लियो भी अब एग्री कर गए, ठीक है लाइकोनाइड्स के साथ ही अब शादी हो जाने दो। अंडरस्टूड। सो लाइकोनाइड्स के साथ फ्रेड्रिया का शादी भी हो गए और लाइकोनाइड्स ने क्या किया, वो जो स्लेव है उनको फ्रीडम भी दे दिया है, मुक्त कर दिया है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, मेगाडोरस का जो कैरेक्टर है, मेगाडोरस को मनाया किसने, यूनोमिया ने। अंडरस्टूड। यूनोमिया ने क्या किया, यूनोमिया ने बोला मेगाडोरस को, देखो मेरे बेटे के साथ फ्रेड्रिया का ऐसा हुआ था, इसीलिए शी इज प्रेग्नेंट नाउ एंड तुम अब ये शादी मत करो। और मेगाडोरस ने बोला ठीक है, अगर मेरे भांजे के साथ ऐसा हुआ था तो इस शादी उनके साथ ही हो जाने दो, ऐसा हुआ। सो मेगाडोरस इज अ गुड कैरेक्टर, यू नो। तब यूक्लियो ने एंडिंग पार्ट में क्या किया, उन्होंने शादी के लिए हाँ भी कर दी और फ्रेड्रिया को तो वो दे ही दिया। फ्रेड्रिया के साथ उन्होंने यूक्लियो ने क्या किया, वो जो पॉट ऑफ गोल्ड है उसको भी लाइकोनाइड्स को दे दिए। दैट मीन्स the pot of gold ultimately goes to whom? Ultimately goes to Lyconides. क्यों? क्योंकि यूक्लियो ने ये बोला है, ये पॉट ऑफ गोल्ड बहुत ही ज्यादा दिक्कत दिए है उनको, बहुत ही ज्यादा टेंशन दिए, रात में वो सो नहीं सका, गार्डन में उन्होंने गड्ढा किया, छुपाने के लिए बहुत सारे कोशिश की, इसीलिए उनका जो लाइफ है वो बिल्कुल ही हेल हो चुके थे। फॉर getting rid of all kinds of tensions, he just gave it to Lyconides as well as Phrygia. So ultimately इस स्टोरी की प्लॉट में यही हम देखते हैं, जो पॉट ऑफ गोल्ड थी, लार फेमिलियर्स ने प्रोलोग में जैसे कहा था, वो अल्टीमेटली फ्रेड्रिया के पास ही चले गए, ठीक है, फ्रेड्रिया के पास ही वो ट्रांसफर हो गए थे। अंडरस्टूड। दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी एंड दैट स्टोरी एंड्स विद द रिंगिंग बेल्स ऑफ marriage of whom? Of Lyconides and Phrygia। और उसी के साथ एक स्टोरी खत्म होता है, हैप्पी एंडिंग। दैट्स व्हाई इट इज अ कॉमेडी। अंडरस्टूड। नाउ थीम्स, नाउ आई एम टर्निंग टू थीम्स। ग्रीड का थीम है, देयर आफ्टर फुलिश ड्रीम। सो क्लेवर सर्वेंट्स, नंबर 3 क्लेवर सर्वेंट्स का थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज फॉर एग्जाम्पल, जो लाइकोनाइड्स का स्लेव है वो बहुत ही ज्यादा क्लेवर है, इसीलिए उन्होंने फ्रीडम के लिए पॉट ऑफ गोल्ड चुराया और अल्टीमेटली ही गॉट फ्रीडम। देयरआफ्टर अनदर housemaid, that is यूक्लियो's housemaid Staphyla, who is also very sympathetic and who is also very intelligent, because Staphyla ने बहुत बारीकी से वो यूक्लियो को मैनेज किया। यूक्लियो के घर में बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे, सब कुछ उन्होंने संभाल के रखे थे। अंडरस्टूड। यूक्लियो ने बहुत सारे उनको मेल ट्रीटमेंट किए, लेकिन वो स्टेफाइला ने को बहुत ही अच्छे से सब कुछ निभाया। एट द सेम टाइम व्हेन फ्रेड्रिया वाज प्रेग्नेंट, स्टेफाइला ने बहुत ही अच्छे से उसके साथ ट्रीट किया और देखभाल की। सो शी वाज एक्सेसिवली सिंपैथेटिक टुवर्ड्स फ्रेड्रिया। अंडरस्टूड। देयरआफ्टर मटेरियलिस्टिक रिचनेस एंड डाउरी। मटेरियलिस्टिक रिचनेस के पीछे यूक्लियो ने भागे। देयरआफ्टर डाउरी, कॉन्टेम्पररी सोसाइटी में डाउरी का बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट थे। वो जो कैरेक्टर है, एक सोलोलियोकी में मेगाडोरस ने बोला मुझे डाउरी नहीं चाहिए, सो मेगाडोरस वाज अगेंस्ट दिस। सो मेगाडोरस के कैरेक्टर अगर हम देखें, यूक्लियो का कैरेक्टर हम देखें, तो हम लोगों को मटेरियलिस्टिक रिचनेस एंड डाउरी के बारे में पता चलता है, ठीक है। रियल वैल्यूज ऑफ लाइफ दैट एक्चुअली कम्स थ्रू सैक्रिफाइस एंड सेल्फ एलिवेशन। दिस इज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ यूक्लियो। यूक्लियो ने एट लास्ट क्या किया, पॉट ऑफ गोल्ड को सैक्रिफाइस किया और रियल हैप्पीनेस को वो फाइंड आउट किए। एट द सेम टाइम जो मेगाडोरस, उन्होंने क्या किया, मेगाडोरस ने फ्रेड्रिया को सैक्रिफाइस किया। Now questions, important questions that can come from this story. Characters, यूक्लियो's character, women characters, Phrygia, Eunomia, Staphyla. Thereafter, yes, servants, those treatment of servants or the characters of servants. Understood? This is also important. The title, plot, theme, these are also very important. And at the end, the ending part of the story,
Yes, this is also very important. So questions can come from these aspects. Another thing that I'd like to tell you that this handwriting is small, and henceforth I will give all these things in the description box. Understood? Description box में सारी information मैं दे दूँगा. So thank you very much. Just enjoy the story and keep watching.